إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور بے شک آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب یعنی تورات وقفینا اور ہم نے پے در پہ بھیجے ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھیجے بعدی اس کے بعد بالرسل بہت سے رسول موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجے وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم البیناتی عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البیناتی کھلے نشانیاں کھلے اور واضح معجزات وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے مدد کی اس کی بروح القدس روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے افکلما کیا پھر جب کبھی بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما ساتھ اس کے جو لا تہوا نہ چاہتے تھے انفسکم تمہارے نفس کو مستکبر تو استکبار کیا تم نے تکبر کیا تم نے تو پھر جب کبھی بھی کوئی رسول وہ پیغام ہدایت لے کر آیا یا وہ حکم لے کر آیا جس کو تمہارے نفس نہ چاہتے تھے یعنی تمہارے نفس نے اس کو پسند نہ کیا تو تم نے تکبر کیا یعنی اس حکم کا انکار کر دیا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ تو ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا اور وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک گروہ انبیاء کو تو تم نے قتل ہی کر دیا وَقَالُوا اور انہوں نے کہا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ہمارے دل پردے میں ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے یعنی ہمارے دل میں کوئی بات نہیں جا رہی ہمیں مت سمجھائے بل لعنہم اللہ تو ان کے دلوں پر پردہ نہیں ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے لعنہم لعنت کر رکھی ہے ان پر اللہ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے فقلیلا تو بہت ہی کم لوگ ہیں ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں جب کسی جملے میں دو جملوں کے درمیان بل آ جاتا ہے تو بل کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلی بات نگیٹ کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے ان کا ایسا کہنا درست نہیں ہے بلکہ اور بل آنے کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ اس حقیقت کو بتائے گا کہ اصل حقیقت یہ ہے اب ہم دوبارہ اسی آیت کو دیکھتے ہیں وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا غلف ہمارے دل غلافوں میں ہیں پردے میں ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دلوں پر کوئی غلاف چڑھ گیا ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر رکھی ہے یعنی اپنی رحمت سے ان کو دور کر رکھا ہے اب یہ ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق نہیں پا رہے تو بہت کم لوگ ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں جو ایمان کو قبول کرتے ہیں فلما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے مصدق لما تصدیق کرنے والی اس کی جو معاہم ان کے پاس یعنی پہلے سے موجود تھی تو جب آئی ان کے پاس کتاب مطلب قرآن وہ کتاب قرآن جو تصدیق کرتی تھی ان کے پاس پہلے سے موجود کتابوں کی تورات اور انجیل اور زبور کی وَكَانُوا من قبل اور وہ سب تھے اس سے پہلے یستفتحون فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے علی الذین کفروا کافروں کے مقابلے میں فلما جاءہم پھر جب آ گیا ان کے پاس ما عرفوا جس کو انہوں نے پہچان لیا کفروا بہ تو پھر بھی اس کے منکر ہو گئے فلعنت اللہ علی الکافرین تو بس لعنت ہے اللہ کی ایسے کافروں پر یعنی جنہوں نے حق کو پہچان بھی لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لیا اور پہچان کر پھر بھی منکر ہو گئے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے
बिअस मश्तरौ, बहुत ही बुरा है जो बेच डाला उन्होंने, बिही जिसके बदले में अनफुसहुम अपने नफ्सों को, अपने आप को, अन यकफुरू कि वो मुनकर हो गए, बिमा उससे जो अंज़लल्लाहु अल्लाह ने नाज़िल किया, यानी कुरान भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी। बग़यन ज़िद की बुनियाद पर अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़्लिही कि नाज़िल करता है अल्लाह अपना फ़ज़ल, अपने फ़ज़ल में से अला मन यशाउ जिस पर वो चाहता है, मिन इबादिही अपने बंदों में से, फ़बाऊ तो वो घिर गए, बेग़ज़बिन ग़ज़ब के साथ, गुस्से के साथ, अला ग़ज़ब गुस्से पर, यानी वो कमाल आए, गिर गए या चक्कर में पड़ गए, ग़ज़ब पर ग़ज़ब यानी गुस्से पर गुस्से के साथ अल्लाह के ग़ज़ब से घिर गए। वलिल काफ़िरीना और काफ़िरों के लिए अज़ाबुम मुहीन बहुत रुसवा करने वाला अज़ाब है। कुफ़ार के लिए रुसवा कुन अज़ाब तैयार किया गया है। किन काफ़िरों के लिए? ऐसे काफ़िरों के लिए जो हक़ को पहचान कर भी इनकार कर दें। तो आज हम इतनी आयत देखेंगे इंशाअल्लाह आयत नंबर 90 तक। हमारा आज का लेसन आयत नंबर 87 से शुरू हुआ। वलक़द आतैना मूसल किताब और बेशक दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब। यहाँ तौरात की बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने तौरात अता की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर और कौम बनी इसराइल को। फिर उसके बाद बहुत से रसूल हमने एक के बाद एक तय दर पे उनकी तरफ भेजे। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के बाद हम जब बनी इसराइल की तारीख देखते हैं, तो बेशुमार अंबिया का ज़िक्र मिलता है। फिर उनके बाद बनी इसराइल के आखिरी नबी जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, वो दुनिया में तशरीफ़ लाए और हम देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम इनकी पैदाइश भी एक मौजज़ाना पैदाइश थी, बगैर बाप के पैदा हुए थे। दुनिया के तमाम इंसान जिस पैटर्न से पैदा किए गए, ईसा अलैहिस्सलाम उससे हटकर एक मौजज़े की सूरत में पैदा किए गए। और हमने दी ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम को बहुत सी निशानियाँ अल-बय्यिनात यानी बहुत से मौजज़ात। ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात की जो लिस्ट है वो बहुत तवील है, बहुत सारे मौजज़ात, जिसमें सबसे बड़ा मौजज़ा इनकी खुद इनकी अपनी पैदाइश भी थी और इनका दुनिया से जाना भी। ये दुनिया में आए भी बिल्कुल अलग तरीके से थे, अल्लाह के हुक्म से और जब ये दुनिया से गए तो उस तरह नहीं गए जिस तरह बाकी तमाम इंसान जाते। यानी मौत का ज़ायक़ा चख कर लोग इस दुनिया से जाते हैं, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमानों की तरफ उठाया और इस वक़्त भी वो आसमानों में कहीं ज़िंदा हैं अल्लाह के हुक्म से और फिर वो क़यामत के नज़दीक ज़िंदा ही आसमानों से ज़मीन की तरफ नुज़ूल फ़रमाएँगे और दमिश्क की जामे मस्जिद के जिस मीनार पर उनका नुज़ूल होगा, अहादीस में वो भी बताया गया। इतनी वाज़ेह अहकामात हैं, इतनी वाज़ेह दलाइल हैं हमारे पास कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं और उनकी ज़िंदगी भी मौजज़ा और उनका दुनिया से जाना भी एक मौजज़ा और दरमियान के पूरे वक़्फ़े में जितनी उनकी ज़िंदगी थी, उनको बहुत सारे मौजज़ात अता किए गए। यहाँ पर सिर्फ़ एक सरसरी ज़िक्र है कि हमने बहुत से मौजज़ात और बय्यिनात देकर उनको दुनिया में भेजा, हमने उनको अता किए। लेकिन क्या किया? रूहुल कुद्स यानी जब उनकी ज़िंदगी क्योंकि एक मौजज़े से ताबीर थी, पूरी ज़िंदगी ही मौजज़ात से भरी हुई थी, तो आम लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं करते थे और ख़ास तौर पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनकी मदद के लिए मौजूद रहते थे। अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम इस्तकबरतुम फिर जब कभी भी आया तुम्हारे पास कोई रसूल वो अहकामात लेकर जिसे तुम्हारे नफ्स नहीं चाहते थे, तो तुमने उसका इनकार कर दिया। यहाँ इस्तिकबार का मतलब इनकार है, इनकार हक़ है। तो एक ग्रोह अंबिया को तो तुमने झुठला ही दिया, झूठा कहा कि जाओ तुम झूठ बोलते हो, हम नहीं तुम्हें मानते। उनको मानने से ही इनकार कर दिया।
और एक ग्रोह को, फरीक कहते हैं लोगों का एक ग्रुप ऑफ पीपल। तो अंबिया कराम के जमात में से कुछ अंबिया को तो तुमने कत्ल कर दिया, यानी तकजीब और कत्ल, ये यहूद के तकब्बुर की इंतहा थी। अब अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो इनके बनी इसराइल के आखिरी नबी थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बात को यहाँ पे शुरू किया गया। हालाँकि मूसा अलैहिस्सलाम से पहले भी बनी इसराइल का जो शजरा नस्ब है वो आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम तक जा मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है वो मूसा अलैहिस्सलाम से शुरू करके जो तौरात दी गई और ईसा अलैहिस्सलाम तक के दरमियान के तमाम अंबिया का ज़िक्र किया गया, जो कि बनी इसराइल की तरफ आखिरी नबी थे। इस दौरान आने वाले तमाम अंबिया को जो भी किताबें और जो भी शरीयतें दी गई, वो सब यहाँ पर उनकी बात की जा रही है। और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के दिए गए मोजज़ात में से कुछ का हम यहाँ पे ज़िक्र करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं किया गया, लेकिन हम ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। कोढ़ी और अंधे को हाथ लगाते थे तो वो तंदुरुस्त हो जाते थे। इसी तरह मट्टी से एक परिंदा बनाते थे, उसमें फूँक मारते तो वो उड़ने लगता था। और आप लोगों को ये भी बता देते थे कि वे क्या कुछ खाकर आए हैं और क्या कुछ घर में छोड़कर आए हैं। यानी इस वक़्त मैं और आप यहाँ बैठे हैं, हमने अभी नाश्ते में क्या खाया है और जो बच गया तो क्या बचा और क्या हम बाकी फ्रिज में रख के आए हैं, ये उनका मुअजिज़ा था। इन मुअजिज़ात का ज़िक्र इनमें से कोई भी अपने से नहीं बताया जा रहा, कुरान की आयत में ही आगे चलकर आपको इसके बारे में दलाइल मिलेंगे। इन तमाम कामों में रूहुल कुद्स यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताईद आपके साथ शामिल हाल रहती थी, तो वो उनकी मदद के लिए हर वक़्त मौजूद रहते थे। लेकिन इतने वाज़ेह अहकामात और इतने वाज़ेह मोजज़ात देखकर भी यहूद ने क्या किया था? ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया था। यहाँ पर अल्लाह ताला इनके तकब्बुर का ज़िक्र कर रहे हैं कि तुमने तकब्बुर किया। तकब्बुर का मतलब ये कि तुमने मानने से इनकार किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि तकब्बुर क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकब्बुर ये है कि तुम लोगों को हक़ीर समझो और हक़ का इनकार करो। तकब्बुर 2 चीज़ें तकब्बुर में शामिल हैं। एक है लोगों को अपने से कमतर समझना और दूसरा दीन की बात का, हक़ बात का इनकार करना। तो यहूद, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि यहूद यानी बनी इसराइल अपने अलावा हर एक को गैर यहूदी कहते थे और उनको अपने से कमतर दर्जे की मखलूक समझते थे और खुद को यहूद कहते थे कि हम अल्लाह के चहीते और अल्लाह के पसंदीदा हैं, हम अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, लिहाज़ा हम हुक्मरानी के लिए पैदा किए गए हैं और जो लोग यहूदी नहीं हैं, वो हमारी रियाया हैं, हम उनके साथ जो सलूक चाहें करें। उनके इसी तकब्बुर का फिर नतीजा ये था कि इन्होंने फिर जब लोगों को हक़ीर समझा तो फिर हक़ बात का भी इनकार कर बैठे, क्योंकि यही तकब्बुर है। अब यहाँ अल्लाह ताला बनी इसराइल के बारे में फरमाया है कि उन्होंने सरकशी, दुश्मनी, तकब्बुर और अंबिया की मुखालिफत का तरीका इख्तियार किया और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में लगे रहे। जो दिल चाहता मानते, जो दिल चाहता इनकार करते। अल्लाह ताला ने यहाँ ये भी फरमाया कि इसने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई, मगर उन्होंने इस किताब तौरात में तहरीफ और तब्दीलियाँ की, अपनी मर्ज़ी से उसको यूज़ किया अपने मफादात के लिए। अल्लाह के अहकाम की मुखालफत भी की, तावील भी की। मसलन अल्लाह ताला ने तौरात में, मैं एक मिसाल बताती हूँ, शादीशुदा ज़िनाकार की सज़ा रजम ही बताई थी कि उनको पत्थर मारकर संगसार किया जाए और उनको उस वक़्त तक पत्थर मारे जाएँ जब तक कि वो मर ना जाएँ, यानी सज़ाए मौत संगसारी के साथ। इसको कहते हैं रजम। ये हद है, जिसको हद्द-ए-ज़िना कहते हैं। ये इनकी तौरात में लिखी हुई थी। अब इन्होंने इसके अंदर क्या तब्दीलियाँ की कि जब इनके कोई अमीर हुक्मरान तबके के लोगों में से कोई ये गुनाह में मुलव्वस होते थे, तो उनको ये फ़तवा दे देते थे कि नहीं, उनके लिए रजम की सज़ा नहीं है। उनके लिए ये है कि उनका मुँह काला करके उनको
बस जो है ना वो मुख्तलिफ गलियों में फिराया जाए और उनको थोड़ा-सा ज़लील और रुस्वा किया जाए और बस फिर उनको छोड़ दिया जाए। यानी अल्लाह ताला ने जिस जुर्म के ऊपर सज़ाए मौत रखी थी, संसारी और रजम रखा था, उसको इन्होंने बदल डाला। हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब अल्लाह ताला ने संसारी का हुक्म दिया, हालाँकि रजम का हुक्म कुरान में मौजूद नहीं है, इसका हुक्म अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और उन्होंने अपने दौर के ऐसे मुजरिमों को संसार किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना सुन्नत से हमें इस रजम के हुक्म की दलाइल मिलते हैं। अब जब यहूद ने एतराज़ किया कि ये सज़ा तो शरीयत में नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि लाओ तौरात, अगर तुम सच्चे हो। तो वो तौरात लाए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात बता रही हूँ। तो वो तौरात लाए लेकिन उस आयत के ऊपर जहाँ रजम का हुक्म था, उस पर अपना हाथ रख लिया कि ये देख ना लें। बाकी तौरात दिखा दी कि ये देखिए इसमें तो रजम का हुक्म कहीं है ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि ये इस तरह का काम कर रहे हैं, इन्होंने ये किया है और तमाम लोगों के सामने उनका झूठ पकड़ा गया कि ये तौरात में से अहकामात छुपाते थे और अमीर लोग इनको भारी मुआवज़े देकर अपनी मनपसंद फ़तवे लिया करते थे। तो ये थी उनकी अल्लाह की किताब के साथ मुआमलात। तावील भी की, तहरीफ भी की। अल्लाह ताला ने उनके बाद और भी बहुत से रसूल और नबियों को भेजा, जो उनकी शरीयत के मुताबिक हुक्म देते थे। जैसे सूरह अल-माइदा में आता है आयत नंबर 44 में, इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर, बेशक हमने नाज़िल की तौरात जिसमें हिदायत है और नूर है। यहकुमु बिहन नबिय्यूना अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानिय्यूना वल अहबारू बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 44। बेशक हमने तौरात नाज़िल फरमाई जिसमें हिदायत और रोशनी है, उसी के मुताबिक अंबिया जो अल्लाह के फर्माबरदार थे, यहूदियों को हुक्म देते रहे हैं और अल्लाह वाले उलमा भी, क्योंकि यानी अंबिया कराम भी इसी तौरात के ज़रिए आम लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहे और नबियों के दुनिया से जाने के बाद जो उनके मानने वाले, अंबिया के मानने वाले, उनके ऊपर ईमान लाने वाले नेक लोग और उलमा, वो भी इसी किताबुल्लाह के निगहबान मुकर्रर किए गए थे, यानी तौरात के, और वो इस पर गवाह थे। फिर यहाँ फरमाया वक़फ़्फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुल, हमने इसके बाद इसके पीछे पैदर पे रसूल भेजे, यानी आगे पीछे रसूल आते चले गए। एक रसूल दुनिया से गया तो दूसरे रसूल आते गए, एक चला गया तो दूसरा आ गया। क़फ़्फ़ैना का मानी है अतबअना, यानी हमने उनके बाद यके बाद दीगरे पैगंबर भेजे। हत्ता कि ये अंबिया कराम का सिलसिला ईसा अलैहिस्सलाम तक चलता रहा। अल्लाह ताला ने ईसा इब्न मरियम को भेजकर अंबिया बनी इसराइल का सिलसिला खत्म कर दिया, जो तौरात से कुछ मुख्तलिफ अहकाम लेकर तशरीफ लाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें खुले निशानात यानी मौजज़ात अता फरमाए। अब हम देखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि बनी इसराइल के आखिरी नबी हैं, अ, ये तमाम मौजज़ात जो ईसा अलैहिस्सलाम को दिए गए इस बात की दलील थे कि वो अल्लाह के पास जिस शरीयत को लेकर आए हैं वो सच्ची शरीयत है। मगर बनी इसराइल ने उनकी शदीद तकज़ीब की। ये यहूद ही थे जो उनके दुश्मनों की सफ में खड़े थे। उन पर ईमान लाने वालों में से चंद उनके हवारी थे, उनके साथी, सिर्फ़ चंद लोग उन पर ईमान लाए। तौरात से कुछ मुख्तलिफ अहकाम लाने की वजह से उनसे शदीद इनाद और हसद किया। अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बिअसत के मकासद बयान करते हुए फरमाया, जिसका ज़िक्र सूरह आले इमरान की आयत नंबर 60 में है, वलिउहिल्ल लकुम बअज़ल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम वजिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, और मैं इसलिए आया हूँ कि बाज़ चीज़ें जो तुम पर हराम थीं, उनको तुम्हारे लिए हलाल करवा दूँ, और मैं तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। यानी तौरात से अलग किताब इनको दी गई क्योंकि उसमें कुछ अलग शरीयत के अहकामात थे। तो इसी इख्तिलाफ की वजह से यहूद ने इनसे
दुश्मनी मोल ली और मुखालिफत की, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरफ ही नबी बनाकर भेजा गया हूँ, यानी बनी इसराइल की तरफ। लेकिन जो अल्लाह ताला ने अलग बातें मुझे दी हैं, वो इसीलिए कि वो तुम्हारी ही इस्लाह के लिए थी, कि तुम्हारे ही कुछ गुनाहों के सबब कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने माज़ी में तुम पर हराम कर दी थी। अब मेरे ज़रिए अल्लाह ताला उनको हलाल करना चाहता है। बनी इसराइल ने अंबिया किराम के साथ हद दर्जा बुरा सलूक किया। बहुत सारे अंबिया की तकज़ीब की और बहुत सारों को तो कत्ल करने से भी दरेगना किया। इसलिए वो ऐसे अहकामात लाए थे जो उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ थे और वो उन्हें अहकाम तौरात की पाबंदी का हुक्म देते थे, जिसकी मुखालफत को उन्होंने इख्तियार कर रखा था। तो इसलिए ये बातें उन्हें बहुत चुभती थी, बहुत गरां गुज़रती थी। यही वजह थी कि वो अंबिया की तकज़ीब करते थे, क्योंकि अंबिया तो ज़ाहिर है हक बात की वसीयत ही करते हैं ना। तो वो तो उनको दीन की बातें सिखाने आए थे, उनकी इस्लाह करने आए थे और तौरात में उन्होंने जो तब्दीलियाँ कर ली थी, वो उन तब्दीलियों को ठीक करने आए थे। लेकिन अगर किसी ने कोई काम गलत किया हो, तो वो चाहता है कि उसकी ये गलतियाँ सामने ना आएँ। इसी वजह से वो इनके खिलाफ हो गए थे। बसा औकात बाज़ अंबिया को तो इन्होंने कत्ल करने से भी दरेगना किया। रूहुल कुद्दुस से मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम है। इसके भी दलाइल हमें कुरान पाक में मिलते हैं कि रूहुल कुद्दुस जिब्रील अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ औकात में कहा गया है। यानी कि उनका एक लक़ब था रूहुल कुद्दुस, पाक रूह के ज़रिए। तो अल्लाह ताला ने पाक रूह के ज़रिए जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए तमाम अंबिया की मदद की है, लेकिन ख़ास तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की थी। एक गिरोह को तुमने गिरोह अंबिया को तुमने कत्ल कर दिया और एक गिरोह को तो तुमने इनकार किया। अल्लाह ताला यहाँ ये बयान फरमाना चाह रहे हैं कि माज़ी में ही नहीं बल्कि मुस्तक़बिल में भी उनकी यही रविश है, क्योंकि उन्होंने ज़हर और जादू के ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की भी कोशिशें की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़ुल वफ़ात में फरमाया था कि खैबर में खाया हुआ ज़हर आलूद लुक़मा वक़्तन फ़वक़्तन मुझे तकलीफ़ देता रहा, हत्ता कि ये मेरी शहरक कटने का वक़्त आ गया। यानी यहाँ तक कि मेरी मौत का वक़्त आ गया, तो एक यहूदी औरत ने बकरी के गोश्त में ज़हर मिलाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने की कोशिश की थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुक़मा जो है वो अपने मुँह में रख लिया था, तो फिर वही के ज़रिए उनको बताया गया और उन्होंने वो लुक़मा फेंक दिया। लेकिन इसी दौरान उनके एक सहाबी ने वो खाना खा लिया था, जिससे फ़ौरी तौर पर उनकी मौत वाक़ई हो गई थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को अपने लिए तो मुआफ़ कर दिया था, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद उस सहाबी का इंतकाल हो गया, तो फिर उसके क़िसास में उस औरत को कत्ल किया गया था। तो मुराद ये है कि ये यहूद अपने तरीके से बाज़ नहीं आए, उनका जो तरीक़ाकार था, माज़ी में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक भी उनका यही तरीका चला आ रहा था। तो इन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी झुठलाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार किया, यहूद ने। इसी तरह देखते हैं हम इनके माज़ी में थोड़ा-सा, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया इन्होंने। ईसा अलैहिस्सलाम को भी इन्होंने ही सूली पर चढ़ाने के लिए उस वक़्त के रूमी बादशाह के साथ मिलकर साज़िश तैयार की थी। तो अब हम देखते हैं हमारी ये इंसानों की ये आदत है कि अपनी बुरी सिफ़ात को भी खूबसूरत बनाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हकीकत का एतराफ़ कर लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। यही हालत यहूदियों की थी कि वो दीन इस्लाम को बरहक समझ लेने के बावजूद इसे कबूल तो इसलिए नहीं करते थे कि इस तरह इनका जो एक मज़हबी रख-रखाव था ना और जो इक़्तिदार था, जो इनका इन्होंने जो एक मज़हबी तौर पर अपने आप को एक बहुत हाई पोज़ीशन में रखा हुआ था, ये इक़्तिदार उनसे छिन जाना था। तो बज़ाहिर उसे यूँ पेश करते थे कि हमारे अकायद इतने मज़बूत हैं कि कोई नया अकीदा कबूल नहीं कर सकते। इसलिए कहते थे वक़ालू कुलूबुना गुल्फ़, कि हम पर तो हमारे दिलों पर गुलाफ़ है, हमारे दिल गुलाफ़ों में है। यानी हम हमारे दिल महफूज़ हैं, कोई नई बात हम पर असर नहीं करती। हमारे अकायद इतने मज़बूत हैं कि हमें किसी नए दीन की ज़रूरत नहीं, हमें किसी नई हक़ बात की ज़रूरत नहीं है।
आप हमें मत बताएँ क्योंकि हमारे पास बहुत दीन है, हमारे पास बहुत सारे अंबिया हैं। हम ऑलरेडी हिदायत याफ़्ता हैं, हमें मत बताएँ। हमारी इस्लाह मत करें, क्योंकि हमारे दिल गुलाफ़ों में है, हमारे दिल पर अब कोई नई बात असर नहीं करती। अल्लाह ताला फरमाने नहीं, ऐसा नहीं था कि तुम्हारे दिल महफ़ूज़ हैं और तुम्हारा अक़ीदा और दीन बिल्कुल मुकम्मल है। असल हकीकत ये है, बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, इनके कुफ़्र की वजह से अल्लाह ने इनके दिलों पर लानत कर रखी है। ये दिल अल्लाह की रहमत से दूर है। लानत का लफ़्ज़ी मतलब होता है रहमत से दूरी। तो जिसको अल्लाह ने अपनी रहमत से खुद दूर फेंक दिया हो, उसको फिर हिदायत और रहमत कौन दे सकता है? और ये लानत किस सबब से आती है? बिकुफ्रिहिम, उनके कुफ़्र की वजह से। तो इन्होंने ये जो कहा कि अब नए नबी आए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम इन पर ईमान नहीं ला सकते इसलिए कि इनकी जो जो बातें ये पेश कर रहे हैं, ये हम पहले से जानते हैं। हमें किसी नई बात की ज़रूरत नहीं है। हम कोई नया अक़ीदा कबूल नहीं कर सकते। हालाँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नई बात नहीं कर रहे थे। वो भी उसी तौहीद की बात कर रहे थे जिसका ज़िक्र तौरात में था। वो उसी अक़ीदा रिसालत की बात कर रहे थे जिसका ज़िक्र तौरात में था। वो उसी अक़ीदा आख़िरत की बात कर रहे थे जिसका ज़िक्र तौरात में था या इंजील में था। कोई भी नई बात नहीं थी। बल्कि ये नई बात उनको क्यों नहीं लग रही थी? क्योंकि उन्होंने अपने दिल की ख़्वाहिशात के मुताबिक, अपने-अपने मफ़ादात के मुताबिक इन तीनों बुनियादी अक़ाइद के अंदर मनमानी तब्दीलियाँ की थी। अब वो इन तब्दीलियों को छोड़ने पर रज़ामंद नहीं थे। इसलिए कि जिन मफ़ादात की ख़ातिर उन्होंने दीन को बदला था, अब उनके नए नबी आने की वजह से जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मदीना में जब हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उस वक़्त ये आयत सूरह अल-बक़रा की नाज़िल हो रही थी। तो अब इनको खतरा ये था कि हमारी जो दीनी इजारादारी है, वो अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे झूठ पकड़े जाने वाले हैं। अब हमारे फ़रेब के कलई खुलने का वक़्त है। तो बात यूँ नहीं बल्कि ये अपने कुफ़्र और हठधर्मी की वज़ह से मलऊन हो चुके हैं, यानी अल्लाह की लानत का शिकार हो चुके हैं। ये उस लानत का असर है कि इनके दिल हक़ बात को कबूल नहीं कर रहे। तो बहुत कम लोग थे उनमें से जो ईमान लाए। तो अब हम देखते हैं कि अब्दुल्ला बिन सलाम एक यहूदी थे, लेकिन वो इस्लाम उन्होंने कबूल किया और इनके अलावा सिर्फ़ चंद गिनती के लोग थे, जिन्होंने यहूद होने के बावजूद इस्लाम कबूल किया था। इस बात का फ़क़लीलन मा युमिनून, तो बहुत कम लोग थे जो ईमान लाने वाले थे। इसका एक तर्जुमा ये किया गया है कि वो अल्लाह की किताब तौरात में से भी बहुत थोड़ी बातों पर ईमान लाते थे, अक्सर अहकाम का इनकार ही करते थे। तो यानी आयत के इस टुकड़े में एक जो हदीस तफ़सीर है उसके मुताबिक कहा गया है कि उलमाए ये जो यहूद थे, ये तौरात के भी बहुत कम हिस्से पर ईमान लाते थे। तो ये अपनी जगह पर एक दुरुस्त बात थी, क्योंकि बहुत सारे अहकामात को तो वो इनकार ही कर देते थे। तो उनका कुफ़्र यानी उन्होंने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार किया था, इस कुफ़्र की वजह से अल्लाह ताला ने उनको फिर हिदायत से दूर कर दिया। अब हम देखते हैं कि उन्होंने इनकार किया, लेकिन हकीकत क्या थी? वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम, और जब आई उनके पास किताब यानी कुरान अल्लाह की तरफ से, जो इसी बात की तस्दीक करने वाली थी जो उनके पास थी, यानी जो शरीयत उनके पास थी तौरात और इंजील की शक्ल में। कुरान ने तो किसी भी मुकाम पर नहीं कहा कि तौरात और इंजील अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा नहीं थी या वो गलत किताबें थी। कुरान तो ये तस्दीक करता है कि वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा ही किताबें हैं, जो उनके नबियों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को अता की गई। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल की गई। कुरान तो तस्दीक करता है, कहीं पर भी इनकार नहीं करता। लेकिन इन लोगों ने जो तब्दीलियाँ की थी, जो अहकामात को बदला था, इस वजह से अल्लाह ताला ने पिछली शरीयतों को कैंसल किया था कि अब पिछली शरीयतों पर अमल नहीं होगा, इसलिए कि अब नई शरीयत अल्लाह ताला ने सही दलाइल के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। तो जो पिछली उम्मतों ने अपने किताबों में तहरीफ़ात की थी, उनको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह कर दिया कि यहाँ और यहाँ इनके इनके अपने उलमाए कराम का किया हुआ काम है। इन्होंने अल्लाह के अहकाम में यहाँ और यहाँ
तब्दीलियां की। फकानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहूना अला लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। जो इन यहूदियों के पास थी तौरात और इंजील, इनकी तस्दीक करने वाली किताब जब आ गई, तो फिर क्या किया इन्होंने? इससे पहले वो कुफ़ार के मुकाबले में आने वाले नबी के ज़रिए फ़तह और नुसरत की दुआएँ माँगा करते थे। यानी मदीना में ये रह रहे थे और मदीना में जो मुशरिक कबीले थे जैसे औस और खज़रज, जो बाद में मुसलमान होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर अहले ईमान में शामिल हो गए और जो अंसार कहलाए बाद के दौर में, तो ये अपने माज़ी में पिछले 100 साल की 200 साल की अगर इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जब भी इनका कोई लड़ाई झगड़ा या कोई मुकाबला या कोई जंग मुशरिकीन से होती थी, तो ये उनको कहते थे और दुआएँ माँगा करते थे कि हमारे हमारे अंदर एक और नबी जो है वो उसका ज़ुहूर अब करीब है, ज़माना करीब में हम हमारे पास एक और नबी आएँगे और जब वो आएँगे, तो उनके साथ मिलकर हम उनकी क़यादत में जब तुम्हारे साथ जंग करेंगे, तो फिर हम तुम्हें मज़ा चखाएँगे। फिर हमें अल्लाह ताला उस नबी की क़यादत में फ़तह नसीब फ़रमाएँगे। तो फिर दुआएँ माँगा करते थे कि या अल्लाह उस नबी को जल्दी मबऊस फ़रमा। तो जब उनके पास वो चीज़ यानी वो किताब, वो कुरान, वो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, उनको उन्होंने पहचान भी लिया। यानी उन्होंने अपनी किताबों में मौजूद दलाइल और निशानियों के ज़रिए ये समझ लिया कि यही वो सच्चे नबी हैं, जिनका ज़िक्र हमारी किताबों में किया गया था। फिर भी, जानकर भी, पहचान कर भी, कफ़रू भी, उसका इनकार कर दिया, कुरान का भी और नबी का भी। फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। तो ऐसे काफ़िरों पर फिर अल्लाह की लानत है। जैसे शुरू में ही हम बात कर रहे थे कि जब किसी कौम को मुँह माँगा मोजज़ा दे दिया जाए और फिर उस मोजज़े को देखकर भी वो इसका इनकार कर दें, तो फिर उन पर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब किसी कौम की तरफ अंबिया और किताबें नाज़िल कर दी जाएँ और फिर वो अंबिया की भी तकज़ीब करें और किताब का भी इनकार करें, तो फिर ऐसे लोगों पर भी अल्लाह की लानत होती है। अब हम देखते हैं कि जब उन्होंने देख लिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नबी हैं, जिनका ज़िक्र हमारी किताबों में है, तो फिर उन्होंने इनकार क्यों किया था? क्या ये इतने बेवकूफ़ लोग थे कि खुद जिसका इंतज़ार कर रहे थे, खुद ही इनकार कर बैठे? तो हम देखते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे थे? जब अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा दिया, यहूदियों ने देखा कि आपका ताल्लुक यहूदियों से नहीं है, बनी इस्राइल से नहीं है, तो उन्होंने अरबों से हसद करते हुए आपके साथ कुफ़्र किया। क्योंकि आप बनी इस्माइल में से थे, अरबों में से थे, अहले मक्का में से थे, जबकि आप देखिए कि ये मदीना में रह रहे थे, लेकिन ये मदीना के लोकल लोग नहीं थे, ये यहूदी। यहूद का असल वतन तो फ़लस्तीन था, शाम था। ये लोग तो वहाँ से जब मुख्तलिफ जंगों के नतीजे में निकाले गए, तो ये हिजरत करके जिला वतन कर दिए गए या वहाँ से खुद हिजरत करके मुख्तलिफ दुनिया में पूरी दुनिया में फैल गए। यही वजह है कि हम देखते हैं कि फ़लस्तीन और ये सारे इलाके इनसे साफ़ करा लिए गए थे। यहाँ से यहूदियों का वजूद ख़त्म कर दिया गया था। तो ये लोग फिर भाग-भाग कर कुछ लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में फैल गए थे। तो पूरी दुनिया में मौजूद जो यहूद हैं, ये एक तो ये ईरान के इलाकों में जाकर आबाद हुए, बहुत सारे यहूद यूरोप के इलाकों में चले गए, बहुत सारे यहूद जो थे ये अरब के इलाकों में आ गए थे, इराक और सऊदी अरब के इलाकों में। इसी इलाके को उस वक़्त हिजाज़ कहा जाता था, जिनको आज हम अरब पेनिनसुला भी बोलते हैं। तो यहाँ इसी बात का ज़िक्र किया गया है कि वो जान चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के वो रसूल हैं, जिनका ज़िक्र तौरात और इंजील में आखिरी नबी की सूरत में किया गया, लेकिन फिर जानबूझकर भी इनकार किया, तो अल्लाह की तरफ से लानत आई। और इन्होंने जो इनकार किया है, इस बारे में हम देखते हैं, एक वाक़या हमें मिलता है
اس کا ذکر ہم اپنے پاس دیکھتے ہیں کہ جب یہ معاملات پیش آ رہے تھے مدینہ میں کہ ایک نبی جس نے نبوت کا اعلان کیا اور یہود نے ان کو پہچان بھی لیا، اس کے انہیں بہت سے ثبوت بھی مل گئے اسی زمانے میں۔ سب سے معتبر شہادت ام المومنین حضرت صفیہ کی ہے، یعنی اس بات کی دلیل کہ وہ ان کو پہچان چکے تھے۔ یہ ایک بہت بڑے یہودی عالم کی بیٹی تھی، حیی بن اخطب کی بیٹی تھی حضرت صفیہ بنت حیی، اور ایک دوسرے عالم کی بھتیجی تھی، یعنی ان کے جو چچا تھے وہ بھی ایک یہودی عالم تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو میرے والد اور چچا دونوں آپس میں ملاقات کی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم خود جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ ان کو ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کی، پھر جب وہ گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کی یہ گفتگو کرتے ہوئے ان کو سنا۔ چچا کہتے ہیں کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ والد نے کہا ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ چچا نے کیا کہا کیا تم کو یقین ہے؟ یعنی تم واقعی اس بات پر یقین رکھتے ہو؟ تو والد نے کہا ہاں۔ تو چچا نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ نہیں کہ پھر اگر یہ سچے نبی ہیں تو ہمیں تو پھر ان پر ایمان لانا چاہیے۔ تو کہتی ہیں کہ میرے والد نے کہا جب تک میری جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہیں دوں گا۔ یہ ابن ہشام جو سیرت کی کتاب ہے، سیرت النبی کی، اس کی جلد دوم میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے جس کا ذکر یہاں پر حضرت صفیہ نے کیا ہے۔ تو مطلب جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں ایز اٹ از ایسا ہی ہوا تھا اس دور میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنی ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے خود کو بیچ ڈالا۔ کیا مطلب ہے یہاں پر اس بات کا؟ یعنی کتنی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے خود کو بیچ دیا۔ وہ بری چیز کیا تھی؟ وہ بری چیز یہ تھی ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ وہ بری چیز یہ تھی کہ وہ محض اس ضد اور حسد کی بنا پر اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے کہ اللہ نے اپنا فضل یعنی اپنی وحی نبوت اپنے جس بندے کو چاہا نواز دیا، اس پر نازل کر دیا۔ یہ تھی ان کو تکلیف۔ ان کی ضد اور حسد کیا تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ بنی اسرائیل میں سے ہوتے تو ہم ان کو مان لیتے، لیکن کیونکہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، یہ اہل عرب میں سے ہیں، تو ہم ان کو نہیں مانیں گے، ہم ان کا انکار ہی کرتے رہیں گے۔ تو اللہ نے اپنا فضل ان کو کیوں دے دیا؟ یہ تھی ان کی ضد۔ فباءوا بغضب علی غضب، لہٰذا ابھی اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ اور ایسے کافروں کے لیے وللکافرین عذاب مہین، اور ایسے کافروں کے لیے بہت ہی رسوا کن عذاب ہے۔ یہ کافر لوگ ہیں، یعنی انہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتابوں کا اور انبیاء کرام کا، تو رسوا کن عذاب ان کا اب مقدر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہود اپنے قول کے مطابق انجیل اور قرآن پر تو اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے کہ یہودیوں نے انجیل کا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا تھا اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کیا تھا، اور انہوں نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ یہ کتابیں ان کی طرف نازل نہیں کی گئی، یعنی یہ ہماری کتابیں اور یہ ہمارے نبی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو تورات میں جب تم یہ لکھا ہوا پاتے ہو کہ اگر کوئی نبی ایسا آئے جو تورات کی تصدیق کرتا ہو اور تورات کے مطابق ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہو تو تم اسے قتل کر سکتے ہو۔ کیا یہ ان کی کتاب میں ایسا لکھا تھا؟ تو ایسا تو تورات میں کہیں نہیں لکھا۔ اگر یہ بات نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا ایمان تورات پر بھی مکمل نہیں ہے،
लिहाजा तुमने इंजील और कुरान का तो इनकार इसलिए किया कि वो तुम्हारी तरफ नाजिल नहीं की गई। लेकिन ज़रा गौर तो करो कि क्या जो तुम्हारी तरफ आई है तौरात, क्या तुम उस पर ईमान लाते हो? नहीं, तुम उसके मुताबिक भी बेईमान और काफ़िर ही हो। लिहाजा तुम पक्के काफ़िर हो। तो ऐसे काफ़िरों के लिए तो रुस्वा-कुन अज़ाब अल्लाह ने जहन्नम का तैयार कर रखा है। अल्लाह के ग़ज़ब पर ग़ज़ब के मुस्तहिक़ ठहरे, इसलिए कि उनके कुफ़्र का सबब उनकी बगावत, सरकशी, हसद और तकब्बुर था। इसलिए उन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में भी ज़लील और रुस्वा किया और आखिरत में भी ये ज़लील और रुस्वा ही होंगे। सूरह अल-मोमिन की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। बिलाशुबा जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर और सरकशी इख्तियार करते हैं, वो अनकरीब जहन्नम में ज़लील व ख्वार होकर दाखिल किए जाएँगे। यानी ज़लील और रुस्वा और हक़ीर होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकब्बुर करने वालों को इंसानी सूरत में, यानी उनकी शक्लें इंसानी होंगी, लेकिन चींटियाँ बनाकर उठाया जाएगा, यानी उनका साइज़ चींटियों की तरह होगा, यानी इतने छोटे-छोटे। इन पर हर तरह की ज़िल्लत और रुसवाई छाई हुई होगी। ये हत्ता कि उन्हें जहन्नम के एक कैद खाने में दाखिल किया जाएगा, जिसका नाम यहाँ पर हदीस में बूलस फरमाया गया है। और आगों की आग उन पर मुसल्लत होगी। उन्हें जहन्नमियों का लहू और पीप पीने को दिया जाएगा। यानी वो लोग जो दुनिया में अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं ना, सरकशी करते हैं, तकब्बुर करते हैं, लोगों को रौंद कर गुज़र जाते हैं, लोगों को ज़लील और रुसवा करते हैं। जो इस तरह के जुमले बोलते हैं जैसे हम अपने माशरे में सुनते हैं कि तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे सामने? मैं तो तुम्हें चींटी की तरह मसल के रख सकता हूँ। मैं तो तुम्हें ये और ये कर सकता हूँ। यानी मेरी पहुँच, मेरा इक़्तिदार, मेरे मालो-दौलत, मेरे तो लिंक्स बहुत हैं, मेरे पास तो ये और ये है, तुम्हारी हैसियत ही कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला वहाँ सज़ा देंगे और उनकी सज़ा क्या होगी? ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब। जो दुनिया में लोगों को कीड़े-मकोड़ों की तरह समझते हैं, आखिरत में अल्लाह इनको तमाम लोगों की कदमों के नीचे जो है ना वो उनकी कदमों का यानी निशाना बना देंगे। लोग उनको रौंदते हुए गुज़र रहे होंगे। इस वजह से कि वो ज़िद में आए हुए थे। ऐसे ज़िद्दी और सरकश लोगों को जो अल्लाह की बात भी नहीं मानते, अल्लाह के नबियों की भी नहीं मानते, मानना तो अलग, उनको बल्कि नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहे। और इनकी तारीख भरी पड़ी है। बहुत सारे अंबिया कराम को इन्होंने कत्ल करने की कोशिशें भी की, कुछ को तो कत्ल करने में कामयाब भी हो गए, जिस जैसे हज़रत ईसा अलैहि सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश इन्होंने ही की थी। ये सारी साज़िश यहूदियों की ही तैयार करदा थी और नऊज़ बिल्लाह ये हज़रत ईसा अलैहि सलाम को वलदुज़ ज़िना करार देते थे। हज़रत मरियम को ये गाली देते थे। यहूदियों को ये उम्मीद थी कि आखिरी नबी बनी इसराइल में से ही होगा, इसलिए 1400 साल तक नबूवत हमारे पास ही रही, ठीक है? क्योंकि ये इस इंतज़ार में थे ना। ये फ़तरत का ज़माना है, जैसे 600 बरस गुज़र गए, अब आखिरी नबी आने वाले हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 ईस्वी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का दौर आता है। इनको ये गुमान था कि वो बनी इस्राइल में से होंगे, लेकिन हुआ ये कि अल्लाह ताला ने अपनी ये रहमत और फ़ज़ल बनी इस्माइल पर कर दिया। ये थे ज़िद और सरकशी पर उतर आए। इसको लफ्ज़ बग़ियन से यहाँ पर ताबीर किया गया। बग़ियन का लफ्ज़ अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि दीन में जो इख्तिलाफ़ होता है, इसका असल सबब यही ज़िद वाला रवैया है, जिसे कुरान बग़ियन कहता है। बग़ी सरकशी। साइकोलॉजी के जो जानने और मानने वाले हैं, उनका नुक्ता नज़र ये है कि इंसान के जिबिली अफ़आल और मुहर्रकात में, यानी इंसान के इंस्टिंक्ट्स और मोटिव्स में एक निहायत ताकतवर मुहर्रक गालिब होने की तलब होती है। यानी किसी दूसरे की बात मानना नफ्स इंसानी पर बहुत बहुत ग्रां गुज़रता है, बहुत मुश्किल होता है किसी की बात को मानना।
वो चाहता है कि मेरी बात मानी जाए, यानी ये हर इंसान के अंदर ये एक नेचुरली बात है कि मेरी मानी जाए, यानी हुकूमत मेरी हो। बाकियन की मानी भी हद से बढ़ने और तजावुज़ करने के, दूसरों पर गालिब होने की ख्वाहिश में इंसान अपनी हद से तजावुज़ करता है। यही वो मामला था यहाँ पर कि हमें ना कहा जाए कि तुम नबी को मान लो या कुरान को मान लो, बल्कि हमारी मानते हुए आप लोगों को चाहिए, नबी को चाहिए कि हम तौरात पर यकीन ले आएँ, ईमान ले आएँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौरात को ऑलरेडी मान रहे थे, उन्होंने तो इनकार किया ही नहीं। तो ये मामला यहूद का था, उन्होंने दूसरों पर रोब झाड़ने के लिए ज़िद्दम ज़िद्दी का रवैया इख्तियार किया। महज़ इस वजह से कि अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल में से एक शख्स मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने फ़ज़्ल व करम से नवाज़ दिया, यानी नबूवत उनको क्यों दे दी? सिर्फ़ ये ज़िद। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे हाँ, आम मामलात में भी, घरेलू मामलात में भी हम देवरानों-जेठानियों में देखते हैं, हम भाइयों के एक मामले में भी देखते हैं कि माँ-बाप एक भाई को क्यों ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं या वो उसकी बात सुनी जाती है, मेरी नहीं सुनी जाती, उसकी राय मानी जाती है, मेरी नहीं मानी जाती। क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर भी यही ज़िद आ जाती है बाज़ औक़ात कि फलाँ टीचर का बहुत चहीता है। तो ये ज़िद, ये हठधर्मी, ये हर तबके के अंदर, हर लेवल के अंदर, हर मजलिस के अंदर आ सकती है क्योंकि ये ज़िद है, हसद है, तकब्बुर है, ये शैतानी सिफ़ात है। तो हम में से हर एक के साथ शैतान है, तो ये शैतान हमारे अंदर वसवसे पैदा करता है और ये ख़्याल पैदा करता है कि लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, तुम्हें कम अहमियत दी जा रही है। तो इस वजह से फिर बाज़ औक़ात इंसान इसी ज़िद और हठधर्मी की वजह से ऐसी सरकशी इख्तियार करता है, ऐसे तकब्बुर का इज़हार कर बैठता है कि फिर दूसरों को नुकसान पहुँचाने से भी गुरेज़ नहीं करता। किसी को मिली हुई कोई नेमत, उससे इंसान हसद का शिकार हो जाता है कि उसको ये क्यों मिली? कोई कामयाबी या कोई मनसब या कोई ओहदा, कुछ भी, कोई अच्छी डिग्री अगर किसी को मिल गई है, किसी की अच्छी जगह शादी हो गई। ख़ानदानों के अंदर देखिए हमारी लड़ाइयाँ क्या हैं? यही तो हैं कि फलाँ के बच्चे का रिश्ता वहाँ पे क्यों हो गया? हमने करना था, ठीक है ना? तो बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं। मतलब सास-ससुर की नज़र में किसी एक बहू की अहमियत ज़्यादा है, वो उसकी बात क्यों मानते हैं, हमारी अहमियत क्यों नहीं है? क्या हम गरीब हैं या क्या हम जहेज़ कम लाए हैं? तो ये बातें एक-दूसरे से खुद को कंपेयर करते रहना, तो यहूद और नसारा और अहले इस्लाम, ये तो मज़ाहिब के अंदर जो है हमें मामलात नज़र आते हैं, लेकिन हमारे घरों के अंदर भी ऐसे ही मामलात हैं कि हसद, सरकशी, तकब्बुर, ये वो मनफ़ी जज़्बात हैं, जो शैतान हमारे दिल में परवरिश करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। बिल-आखिर फिर हम किसी न किसी दिन फट पड़ते हैं और फिर किसी न किसी के ऊपर अटैक कर बैठते हैं और अपना तो दुनिया का भी नुकसान करते हैं और अपना तो आखिरत का भी करते हैं। दूसरे का तो शायद दुनिया का ही सिर्फ़ नुकसान होता है, आखिरत में तो उसके लिए भला ही भला है। इसलिए कि जिसके ऊपर ज़ुल्म होता है या कोई ज़्यादती होती है, अल्लाह की मदद और हिमायत उसके साथ होती है। लेकिन हम अपनी सरकशी में और तकब्बुर में दूसरों की दुनिया और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर बैठते हैं। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।